بہنوں بھائیوں، جس عبادت میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہمارے مذہبی اور معاشرتی ثقافت کے اعتبار سے ہم اسے میموریل سروس کہتے ہیں یا صف ماتم کی عبادت ہے۔ ہمارے بزرگ شمعون کو یہوہ خدا نے اپنی پاک اور پاکیزہ مرضی سے اپنے ٹھہرائے وقت پر اپنے پاس بلا لیا۔ دعا ہے کہ خدا ان کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، دامادوں کو، پوتے پوتیوں کو اور نواسے نواسیوں کو تسلی، تشفی، صبر، تحمل، اطمینان اور تسکین عطا فرمائے۔ سب کہیے آمین۔ زور سے کہیے گا آمین۔ تاکہ یہ سارا گھرانہ بھی اپنے اس بزرگ کے انتقال کر جانے پر بڑے بڑے نبیوں کی طرح، بڑے بڑے پیغمبروں کی طرح، بڑے بڑے مقدسین کی طرح اور بڑے بڑے خدا کے برگزیدہ لوگوں کی طرح اسی بات کے عہد کو دہرائیں کہ تو نے دیا، تو نے لیا اور تیرا ہی نام۔ آمین۔ پھر میں شکر گزار ہوں اپنے بزرگ پاسٹر یونس صاحب کا، جن کے ہاتھوں میں مجھ جیسے بہت سے خادم پل بڑھ کر جوان ہوئے، اور اپنے ہم خدمت بھائی پاسٹر تیموتھیوس صاحب کا دعا ہے کہ خدا ان کے گھرانے کو بھی خوشیاں، خوشحالیاں، شادمانیاں اور برکتیں اور بخششیں اور نعمتیں بہتات اور فراز عطا کرے۔ سب کہیے آمین۔ بہنوں بھائیوں، جس راستے ہمارے یہ بزرگ اس دنیا سے گئے، یہ اس کائنات کی کڑوی اور اٹل ترین سچائی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوگا اس کے دن گنے گئے ہیں، گھڑیاں گنی گئی ہے، لمحات طے کیے گئے ہیں، اس کی عمر کی حد خدا کے پاس مقرر ہے، اور ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی گھڑی، کسی نہ کسی لمحے، کسی نہ کسی وقت پہ اسے اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے۔ اور ہمیں سال ہر سال ہو گئے دیکھتے کہ ہمارے عزیز، ہمارے اقارب، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ، آئے دن ان میں سے کوئی نہ کوئی اس دنیا سے انتقال کرتا ہے۔ اس موت نے کبھی کسی کی سیاسی بساط کو نہیں دیکھا، اس موت نے کبھی کسی کے معاشرتی دبدبے کو نہیں دیکھا، اس موت نے کبھی کسی کے روپے پیسے کو نہیں دیکھا، اس موت نے کبھی کسی کے تجربے کو نہیں دیکھا، کبھی کسی کے مقام کو نہیں دیکھا، کبھی کسی کے مرتبے کو نہیں دیکھا، کبھی کسی کی زرعی اراضی کو نہیں دیکھا، کبھی کسی کے بڑے بڑے محلات کو نہیں دیکھا۔ آئے دن یہ کسی نہ کسی کو ہم میں سے اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے، کوئی اس کو روکنے والا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موت آئی کتوں ہے؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ اگر ہم اور آپ ہیں تو بھی خدا ہے، ہم اور آپ نہ ہوتے تو بھی خدا ہوتا۔ یہ آسمان اور زمین جو آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ ہے تو بھی خدا ہے، یہ نہ ہوتے تو بھی خدا ہے۔ ہاللویا، کہیے ہاللویا۔ یاد پڑتا ہے کلام خدا میں مرقوم ہے کہ خدا کے تخت کے سامنے فرشتگان تھے، قدسیان تھے، ملائکہ تھے، متنفسین تھے، سرافیم تھے، جو ہر وقت خدا کو قدوس 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 کہا کرتے تھے۔
उन सारे फरिश्तों का सरदार फरिश्ता था लूसीफर। क्या नाम था जी उसका? लूसीफर। अब सरदारी और मुख्तारी पूरी डिटेल के साथ तो नहीं लिखी, अंदाजा कर लो, आगे आगे पढ़ता होगा कदूस कदूस कदूस, सारे फरिश्ते पीछे पीछे पढ़ते होंगे कदूस कदूस कदूस। उस फरिश्ते ने ख्याल किया खुदा तख्त पे बैठा है, सारे फरिश्ते मेरा आखा मनते ने, मैं बोलना ता बोलते ने, मैं गाना ता गांदे ने, मैं पढ़ना ता पढ़ते ने, मैं झुकना ता झुकते ने, ये सारे ते मेरे कहने च ने, ते होवे ना ते खुदा नूं ओहदे तख्त तो ला के सुट देना, ते ओहदे तो बाद मैं ही खुदा वां। ओनू ये नहीं सी पता कि बनन वाला वड्डा नहीं हुंदा, बनान वाला वड्डा हुंदा है। हालेलुया। वड्डा कौन हुंदा है जी? बनान वाला। वड्डा कौन हुंदा है? बनान वाला। उस बनान वाले ने उस बनन वाले नूं अपने तख्त दे सामने रद्द कर छड़िया, तर्क कर छड़िया, आग कर छड़िया ते आखिया अज तो बाद इनू किसी ने फरिश्ता नहीं कहना, इनू किसी ने कुदसी नहीं कहना, इनू किसी ने मलायक नहीं कहना, इनू किसी ने नूरी नहीं कहना, अबलीस कहना है, शैतान कहना है, मूसी कहना है, मलाऊन कहना है, मरदूत कहना है। जिन्ने भी खलीस ना ने ओहदे हो गए। पढ़ के देख लीजिए मुकद्दस यसाया नबी का सहीफा, उसका बाब नंबर 14 और उसकी आयत नंबर 12। जिन लोगों के पास खुदावंद का जिंदा कलाम तहरीरी शक्ल में मौजूद है, जरा जल्दी से निकालिए यसाया नबी का सहीफा, उसका बाब नंबर 14 और उसकी आयत नंबर 12। लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, और कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। बहनों बेटियों में से या इनमें से किसी का ख्याल है कि वो बड़ा छेतिया वाला कट के पढ़ लेगा, तो जरा इतने सामने तशरीफ लाओ। है कोई हिम्मत वाला जी? खुदा के खादम पास्टर तमोथिया साहब को एक माइक फराहम किया जाए जी, यही बैठ जाए आप हमारे लिए मोहतरम। 14 बाब 12वीं आयत। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर भटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा और मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से ऊंचा करूंगा। कहिए आमीन। और मैं शुमाली अतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा। ऐ उस गल दा सबूत है भैनों भराओ कि इस फरिश्ते ने खुदा दे हजूर की कीती सी, बगावत कीती सी। की कीती सी जी? सरकशी कीती सी। की कीती सी? फिर जेड़े फरिश्ते दे नाल रले, खुदा ने उन्हां नूं भी चुक के मारिया ते आख्या अज तो बाद ए बदरूआं ने फरिश्ते नहीं। आमीन। अयूब की किताब निकालिए भाई, उसका बाब नंबर 15 और उसकी आयत नंबर 15 पढ़ दीजिए। क्या लिखा है कलाम में खुदा के बारे में कि देख वो अपने कुदसियों का एतबार नहीं करता। अयूब 15 की 15। देख वो अपने कुदसियों का इतबार नहीं करता। देख वो अपने कुदसियों का, अपने फरिश्तों का एतबार, बल्कि आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं। कहिए आमीन। खुदा ने देखा कि फरिश्ते बेएतबारे हो गए ने, फरिश्ते बेभरोसा हो गए ने। अज एक ने बगावत की है, कल दूजा करेगा, होवे ना ते एक नवा जहान वसाना। कहिए हालेलुया। हालेलुया। होवे ना ते एक, जहां से हमारी और आपकी बाइबल मुकद्दस शुरू होती है। पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 आयत नंबर 1। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। उसने कहा आसमान बन जा, आसमान। उसने कहा जमीन बन जा, जमीन बन वो गई, कहता गया, होता गया। कहिए हालेलुया। ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये सैयारे, ये ओले, ये शबनम, ये बारिश, ये बर्फे, ये फजाएं और घटाएं उसने अपने दाहिने हाथ की कुदरत से पैदा की है। ये
ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗਾਂ ਵਿਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੁਗਨੂ ਤਿਤਲੀ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆਲਮ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਫਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਰਜ ਵੰਡਦਾ ਨਗਰੀ ਨਗਰੀ ਲੋਵਾ ਫੁੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਵਰੇ ਮੰਗਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜਿਸਨੇ ਰੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆਲਮ सारे हालेलुया ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਝੀਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਔਲੇ ਸ਼ਬਨਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਫਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹਰ ਪਲ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆਲਮ सारे ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਕੌਣ ਟਿਕਾਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪੇ ਕੌਣ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆਲਮ सारे जिसकी निगाह में खुला अर्शो फताल है वो साहिबे अकल है साहिबे कमाल है उसके कदम की खाक है ये सारी कायनात वो एक शहनशाह खुदा जुल जलाल है। कहिए हालेलुया। खुदा ने ये सारा कुछ 5 दिन में पैदा किया। कितने दिनों में? छठे दिन खुदा ने कहा आओ हम इंसान को बनाए अपनी छवि अपनी सूरत और अपनी मानिंद। ये तीनों की तीनों टर्मिनोलॉजीज ये तीनों की तीनों इस्तिलाहें कलाम खुदा में लिखी है। अपनी छवि अपनी सूरत ते अपनी मानिंद फारसी जुबान का लफ्ज है ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है अपने वर्गा। किदे वर्गा जी? अपने वर्गा पैदा किया। आदम नू मुफसर करना बड़ा मशहूर वाकया है हर मजहब में हर दीन में स्कॉलर्स को क्या बच्चों को याद है आदम नू पैदा किया हवा नू पैदा किया सारी खलकत सारी क्रिएशन आदम दे नावे ला दी ते सोना नवेखला बाग अदन अलग तो बनाया। फिर खुदा ने ओदे लिए जिंदगी दा साथी पैदा किया की ना सी अम्मा हवा दुआ जियां नू बागे अदन च रखिया सारियां नेमतां दे दित्तियां सारियां बरकतां दे दित्तियां सारियां बख्शिशां दे दित्तियां सारियां खुशियां दे दित्तियां सारियां खुशहालियां दे दित्तियां सारियां शादमानियां दे दित्तियां ते आखो फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। उर्दू अदब दा महंगा तरीन जुमला है ਇਹਦੀ ਸਲੀਸ ਕਰ ਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਦੀ ਖਤਮ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि रोज ओ खुदा जिदे बारे खादम ने पढ़ के सुनाया पादरी साहब ने कि ओनू अपने फरिश्तियां ते भरोसा ओनू अपने फरिश्तियां ते भरोसा ओ खुदा रोज अपना तख्त छड़ के अपनी शाही छड़ के अपनी सल्तनत छड़ के अपनी हुक्मरानी छड़ के बागे अदन चाहुंदा है मिट्टी दे खिडौणे ते खाक दे पुतलियां नू मिलन। हुण जदों ये गल अबलीस नू पता चलेगी जेड़ा पहला फरिश्ता सी ओनू चंगी लगेगी। थकते नहीं गए भी पिछे वाले तक आवाज आ रही है ना आएगी तो अगे आ जाओ क्यों जी जिथे थक जाओगे असीं पुछ लांगे फिर झट बाद उत्थे छड़ देंगे क्यों जी गल वो जेड़ी तुसीं पहुंचा लो। अगर हम कोई बात आप तक पहुंचा के ना गए तो वो हमें मारेगा। अगर हम पहुंचा के गए आपने अमल ना किया असी पूरी कोशिश करांगे भी असी बचिए। ठीक है जी गल सच्ची करनी चाहिए। सबसे बड़ी नेमत यह थी कि खुदा रोज अपना तख्त छोड़ता फरिश्तों को छोड़ता बागे अदन में जाता आदम से मिलने किस वक्त? ठंडे वक्त पे। ये ठंडा वक्त कौन सा है? तुसी सेमिनरी दी किताबां भी पढ़ लो। मैं 4 सेमिनरियां कीतियां ने ते बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लिखा है शाम का केड़ा क्यों वाला शहरां दे ने हां जी कित्थों दे ने शहरां दे किताबों में लिखा है जी वो शाम का वक्त था। हालांकि जिस किते जिस बाइबल का तर्जमा होया उत्थे ठंडा वक्त शाम दा नहीं गा। चिड़ी चूक दी नाल जा तुरे पांदी ओ पईयां दुੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ नहीं
सुबह सादक होई जदों आ रोशन तदों लालियां विच चलाणियां नहीं, एक ना उठ के रेड़का पा दिता, एक लभदियां फिरन दुधाणियां नहीं, एक उठ के हली तैयार होए, एक लभदे फिरन पंजालियां नहीं, ओ लईयां कढ हरनालियां हालियां ने, सियां भोई नूं जिन्हां ने लाणियां नहीं, घर बाहर ना चक्कियां जोथियां ने, जिन्हां तावना गुण पकाणियां नहीं, मिट्टी लियाउण नूं कदे घमियार कस्सण चले बावली करन दीवानियां नहीं, पानी लाण नूं कामे खुज उत्ते बैठे कदी ते पकड़ परानियां नहीं, होए काफले कूट सरा विचों खड़कन टल पर बात चलानियां नहीं, ओ वेला तो आता ही रब तो मंग वारस जिन्हें बेड़ियां पार। अब ठंडा वक्त कौन सा हुआ? सुबह का। खोल के ताड़ी मार लिया करो, कोई गल नहीं। जो महफिल होती है ख्याल किया जाता है भी इंज दी इबादत च भी जो हम यहाँ बैठे हैं वो भी उसके हजूर में, अब जो हमसे मुंतकिल हुआ वो भी ते ओ महफिल किनियां हो गई, ते फिर जो वो बैठा है ते फिर सारे एक ही है। हालेलुया हालेलुया। ਜਦੋਂ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ੋਰ ਆਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਾਮਹਦੂਦ ਕੂਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਡਾਉਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮੁਫੱਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। अब जो लोग स्कॉलर्स है उन्होंने पता कि यह लिखा रोज मिलता सी किन्ना अरसा, 930 वरे उम्र बाइबल ने आदम चो निकलने तो बाद ही गिनी है। इबलीस नूं पता चलिया कि जिथे खुदा ने इन्ना कुछ आदम नूं दिता है। हमारी माएं बहनें ब्याहों शादियों पे गाया करती थी कि दाना तेरियां मैं लख मनती मेरी एक मन्ने ते मैं, क्यों जी यही हुआ। खुदा ने आख्या सी आदम एक हुक्म तू मेरा भी मनना है कि ए बाग दे विचकार वाले रुख दा फल तू खाना, जिद्दन खादा उदन मरिया, नहीं खाता, खादा ते इत्थे बैठे आना ते सवेरे कमां ते जाना है, क्यों जी। खादा ते सारियां मेरियां बीबियां भैणां इत्थे बैठियां ने ना, जिन्हां नूं फिर परेशानी दित्ती गई। इंसान है जिधरों डकोगे 100 साल रवे विच शेरां दे, बच्चा बिल्ली दा शेर नहीं हो सकता, होवे बंदे दा पुत्तर ते नेक होवे, तोबा एडा हनेर नहीं हो सकता।